Dear learners, I am Dr. Sunil Kumar Singh, Senior Professor in Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi. Today I am going to present the 25th lecture under the course Teaching Skills for Higher Education. The title of the lecture is Precautions While Giving Reinforcement. प्रिय अधिगमकर्ताओं, आज उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण कौशल पाठ्यक्रम के अंतर्गत 25वां व्याख्यान मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस व्याख्यान का शीर्षक है पुनर्बलन प्रदान करते समय सावधानियां। तो आइए विषय वस्तु के विषय में बात करते हैं। इस व्याख्यान के अंतर्गत 10 भागों में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले प्रस्तावना है, उसके उपरांत विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के विषय में और कमियों के विषय में कैसे उनको रोका जाए ये बताया गया है। फिर विभिन्न प्रकार के घटकों के विषय में हम क्या सावधानियां बरतें इनको बताया गया है। फिर नैतिक पक्षों को कैसे ध्यान में रखा जाए, सांस्कृतिक पक्षों को कैसे ध्यान में रखा जाए, फिर किस प्रकार से हम डिनायल रीइंफोर्समेंट को अवॉइड कर सकते हैं और उच्च शिक्षा में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, सामान्य गलतियां क्या होती हैं, उनको रोकने के तरीके क्या हैं। इसके उपरांत हम संवाद हेतु स्वतः रिफ्लेक्शन की दृष्टि से कुछ पक्षों को रखेंगे और अंत में निष्कर्ष को प्रस्तुत करेंगे। Therefore, the contents include the introduction, challenges, various types of precautions, ethical, cultural considerations, avoiding denial reinforcement, various types of precautions in higher education, some common mistakes and fixes, discussions and reflection, and last will be conclusion. So let us begin with introduction. आइए प्रस्तावना से हम प्रारंभ करते हैं। You are seeing that here there is indication of signal lights and these are red, yellow and green. These lights are itself indicating how to check ourselves, how to minimize something, how to go ahead. Similarly, in the class, reinforcement acts as a check. Reinforcement act as a milder and reinforcement helps us to proceed in the right direction. Hence, reinforcement is a powerful teaching tool, but its effectiveness depends on how it is applied by the teacher. When you are going to apply it without care, it can reduce motivation, encourage dependency, or even reinforce undesirable behaviors. To avoid all this, teacher must use reinforcement thoughtfully and strategically. It requires professional judgment, continuous reflection, and focus on student growth rather than control. By taking proper precautions, educators can ensure reinforcement supports long-term behavior changes. संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्रबलन एक बहुत ही सशक्त शिक्षण उपकरण है और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करते हैं तो यह एक प्रेरक का काम कर सकता है और वांछित व्यवहारों को जन्म देता है। बल्कि हम ये देखते हैं कि अगर इसका ठीक ढंग से आप उपयोग नहीं करते हैं तो कई बार यह आपके लिए समस्यात्मक भी हो सकता है और कक्षा में अवांछित व्यवहारों को जन्म देता है। इस प्रकार के परिणामों को रोकने के लिए शिक्षा में विशेष तौर पे प्रबलन का उपयोग शिक्षक द्वारा विचारशील तरीके से और सोच समझ करके करना चाहिए। इसके अंतर्गत सतत स्वतः रिफ्लेक्शन बहुत आवश्यक है। तात्पर्य है कि प्रतिपुष्टि लेना और सुधार करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम सही दिशा में कक्षा को ले जा सकते हैं। यहाँ आप ये देख सकते हैं
कि कुछ चुनौतियां या कुछ कमियां जो कि अक्सर होती हैं उनको कैसे रोका जाए और कैसे नियंत्रित किया जाए, इसकी बात की गई है. देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एंड सर्टेन pitfalls they have been discussed here. Not using reinforcement selectively, same feedback regardless of response quality and situation. Sometimes teachers are in habit of utilizing same feedback, same words, everything same, so it should be avoided. It makes the class monotonous. तो कक्षा में प्रतिपुष्टि के लिए एक ही प्रकार के शब्दों का उपयोग आप न करें. ऐसा करने से आपकी कक्षा अप्रभावी हो सकती है. Overuse reducing effectiveness or avoid tangible reinforcements as routine. Means effectiveness is reduced if you are overusing. So you should be careful about it in routine. And routine reinforcers should be avoided sometimes. Inappropriate dependency means creating dependency on external rewards and over-reliance on extrinsic motivators should be done. Inappropriate timing should be avoided and inconsistent application creating confusion to be avoided. हम यहाँ पे कह सकते हैं कि खास तौर पे इस प्रकार की निर्भरता नहीं होनी चाहिए जिससे कि कक्षा में आप इसको ओवर यूज करने लगें, अनावश्यक तरीके से उपयोग में ले आने लगें, गलत समय पे इसका उपयोग करने लगें. और यदि आप इसका उपयोग इस प्रकार से करते हैं तो कई बार भ्रम की स्थिति इससे उत्पन्न हो जाती है. Now coming to certain other challenges like cultural insensitivity in reinforcement methods. You should be aware about the culture in which you are using. जिस संस्कृति में इसका उपयोग किया जाना है उसकी बारीकियों की जानकारी आपको होनी चाहिए. और यदि आप उस संवेदना को कायम रखते हैं तो आप प्रभावी होते हैं. अगर आप असंवेदनशील होते हैं तो आपकी प्रभाविता कम हो जाती है. Similarly, neglecting intrinsic motivation development and creating dependency on external validation has to be cared. It means you should try to promote intrinsic motivation and you should always balance intrinsic and extrinsic rewards. Not balancing between positive and negative reinforcement is another challenge, and focus on person rather than behavior or effort is another challenge. तो यहाँ पे यदि आप व्यक्ति पर केंद्रीकरण करते हैं उसके व्यवहार पर नहीं तो ये एक समस्या है. यदि आप सकारात्मक और नकारात्मक प्रबलकों पे एक संतुलन बना के आगे नहीं बढ़ते हैं तो ये भी समस्या है. इसी प्रकार से आंतरिक और बाह्य रिवार्ड्स के बीच में भी संतुलन कायम करना आवश्यक होता है, अन्यथा यह समस्या को जन्म देता है. There are certain precautions for various components. विभिन्न प्रकार के घटकों के संदर्भ में कुछ सावधानियां हैं. Like precautions with verbal reinforcement, language selection, specificity, tone awareness, cultural sensitivity and timing. These are basic precautions. तो भाषा का चयन, उसकी सटीकता, किस प्रकार के आवाज को कितनी तेजी के साथ बोला जाए इसकी जागरूकता, और उसमें कैसे आरोह का संचालन किया जाए इसकी जानकारी, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, किस समय किसका उपयोग किया जाए, यह शाब्दिक प्रबलन में सावधानी बरतनी चाहिए. Regarding precautions with non-verbal reinforcement, consistency, cultural appropriateness, personal space, intensity calibration and inclusivity are important. अशाब्दिक प्रबलकों में सततता, सांस्कृतिक सटीकता, व्यक्तित्व का क्या स्थान है और किस प्रकार से समावेशिता को उसमें सम्मिलित किया जाए, ये सारे पक्ष
अशाब्दिक प्रबलकों के अंतर्गत हमें समाहित करने चाहिए। नाउ कमिंग टू इथिकल कंसिडरेशंस, अपने आचार को किस प्रकार से नियंत्रित करें, स्वतः आचार को कक्षा में कैसे नियंत्रित करें, इसका भी हमें ख्याल रखना है। नाउ फर्स्ट इज पावर अवेयरनेस, रिकॉग्नाइज टीचर स्टूडेंट पावर डायनेमिक्स इन रीइंफोर्समेंट। कक्षा में विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच में संतुलन होना चाहिए और उसकी पहचान करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैनिपुलेशन अवॉइडेंस, नेवर यूज रीइंफोर्समेंट टू कंट्रोल और मैनिपुलेट। नियंत्रण के लिए कक्षा में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्राइवेसी कंसिडरेशन, कंसीडर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ पब्लिक वर्सेस प्राइवेट रीइंफोर्समेंट। तो किस तरह से सार्वजनिक जगहों पर या व्यक्तिगत रूप से प्रबलन का उपयोग किया जाए, इसमें भेद आना चाहिए। इंटीग्रिटी मेंटेनेंस, एंश्योर रीइंफोर्समेंट authentically and it reflects performance, it should be ensured, means you should see that authentic reflection of performance should be done. It should not be vague, it should not be misleading. तो ईमानदारी के साथ प्रबलन का उपयोग प्रामाणिक तरीके से किया जाना चाहिए। डिग्निटी प्रिजर्वेशन, इट मीन्स मेंटेनिंग स्टूडेंट डिग्निटी रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस। विद्यार्थी का परफॉर्मेंस जो भी हो, परंतु विशेष तौर पे उसके प्रति हमें आदर का भाव होना चाहिए। फिफ्थ is cultural considerations. In cultural consideration, inclusive approaches should be focused. सांस्कृतिक पक्षों के संदर्भ में समावेशी पक्षों को समाहित किया जाना चाहिए। Respect cultural differences in receiving praise. Understand diverse motivational factors. Recognize varying comfort with public recognition. Considered family values around achievement, develop culturally responsive token system, create inclusive language for verbal reinforcement and adapt non-verbal cues to cultural context. समग्रतया यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक भिन्नताओं का आदर किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को प्रेज करने में भी उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरित करने वाले कारकों को समझ करके ही उनका उपयोग किया जाना चाहिए और विशेष तौर पे पारिवारिक मूल्यों को उपलब्धि के संदर्भ में जांच परख करके ही उपयोग किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पक्षों को ध्यान में रखते हुए आपको पुरस्कार का उपयोग करना चाहिए। ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो समावेशी हो और शाब्दिक रूप से अभिप्रेरित करने वाली हो, प्रबलन करने वाली हो। इसके साथ ही अशाब्दिक संकेतों को भी सांस्कृतिक संदर्भों में उपयोग में लाया जाना चाहिए। Then avoiding denial reinforcement, absence of expected reinforcement, they include the following: withholding reinforcement when warranted, failing to acknowledge significant contributions, missing opportunities for positive feedback, creating expectation gaps in reinforcement, and inconsistency in reinforcement patterns. So demotivating effects of reinforcement actions. So you find that different types of denial reinforcements are to be avoided in the class. हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज को प्रबलकों के अंतर्गत मना करना ऐसा उचित नहीं है। हमको विशेष तौर पे बड़े संतुलित तरीके से नकारात्मक प्रबलकों का और सकारात्मक प्रबलकों का उपयोग उनकी समझ को बढ़ाते हुए करना चाहिए। विशेष तौर पे यहाँ विभिन्न पक्षों को दर्शाया गया है, जिसमें आप ये देखेंगे कि अगर कोई बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है
तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। सकारात्मक प्रतिपुष्टि के अवसरों को नहीं खोना चाहिए। कई प्रकार से अपेक्षाओं को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के रेनफोर्समेंट पैटर्न्स को सजगता के साथ उपयोग में ले आना चाहिए। हमको ऐसी चीज़ों को उपयोग में नहीं लाना चाहिए जो कि विद्यार्थी को डीमोटिवेट करें। तो इन पक्षों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। सर्टन प्रिकॉशंस फॉर हायर एजुकेशन लेवल। Adult learning respect is mandatory. You must honor adult learners' autonomy and experience. Sophistication level, use reinforcement approaches appropriate for mature students. Professional preparation means model workplace feedback approaches are to be used. Peer perceptions means consider how reinforcement affects peer dynamics, and self-directed learning has to be promoted. तो उच्च शिक्षा में खास तौर पे विद्यार्थियों की मैच्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, उनका आदर किया जाना चाहिए, उनके अनुभव, उनकी स्वायत्तता को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी जटिलता को भी ध्यान में रखना चाहिए और किस प्रकार के प्रबलकों के तरीके उपयोग में लाने हैं उन पे भी विचार करके ही उपयोग करना चाहिए। व्यावसायिक निर्माण की दृष्टि से कार्य स्थान पर या कार्यस्थल पर किस प्रकार की प्रतिपुष्टि प्रदान करें, उसके प्रतिमान आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। किस तरह से समूह में हम चीज़ों को स्वीकार या अस्वीकार करें, इन पक्षों को भी समाहित करना चाहिए और मूलतया यह ध्यान रखना चाहिए कि उच्च शिक्षा में स्वतः प्रेरित होकर किस प्रकार से विद्यार्थी अधिगम करे, इसके लिए प्रगल्भों का उपयोग किया जाना चाहिए। अब कुछ कमियों के बारे में हम बात करते हैं और उन कमियों को कैसे रोका जाए। सम कॉमन मिस्टेक्स एंड फिक्सेस रिलेटेड टू देम हैव बीन फोकस्ड हियर इन दिस स्लाइड। सम कॉमन मिस्टेक्स आर हियर। ओवरयूज ऑफ जेनेरिक प्रेज। एग्जाम्पल, you are saying good. Sometimes you are in habit of saying good for everything. This is all overuse of generic phrase. Okay, then in such cases you must learn to use fixed type of statements, like your thesis statement is clear and concise. It means you have really observed the particular statement in the thesis and you are saying that it is clear and concise. So this is the way to fix this overuse of generic phrase. Similarly, inconsistent reinforcements, like random rewards. You are not thinking randomly something is coming to your mind and you are utilizing it. You should replace it by systematic and immediate acknowledgement. विद्यार्थी जिस समय जो कार्य करता है उसके संदर्भ में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तात्कालिक प्रशंसा की जानी चाहिए, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। इग्नोरिंग स्मॉल विन्स, छोटी छोटी जीत भी विद्यार्थी के लिए तो जीत ही होती है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मीन्स only praising A grade. Sometimes some people are getting A grade, you are praising, not others. This is not correct. तो हर ग्रेड के विद्यार्थी को अपने ढंग से डील करें, उसको प्रेज करें, संचालित करें। You should learn to celebrate progress. You improved by 10%. Maybe somebody has moved from C to B grade. That has to be considered and praised. तो विद्यार्थी की हर प्रगति को संज्ञान में लेते हुए आप उसको मोटिवेट करें। देन ओवर यूज ऑफ सेवरल टोकन्स, बहुत सारे पुरस्कारों का अगर बार बार उपयोग करते हैं, लाइक स्टिकर्स, स्टार्स एटसेट्रा, दिस इज ए मिस्टेक और ए प्रॉब्लम। इट कैन बी removed by sporadic surprise reward. Somebody is not expecting and you are rewarding. तो किस तरह से प्रबलकों का उपयोग किया जाना है, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक समझ कर उपयोग किया जाना चाहिए। Now coming to the almost last part, some discussions and reflection. आप सभी को स्वतः इन पक्षों पे विचार करना चाहिए। कई बार अपने छोटे समूहों में भी आप इन पे विचार कर सकते हैं। लाइक
which components work best in your teaching context? जब आप पढ़ाते हैं तो कौन से घटक सर्वोत्कृष्ट तरीके से कार्य करते हैं? आप इस पे विचार कर सकते हैं कि पढ़ाते समय कौन सा घटक आपके लिए श्रेष्ठतम होता है, उसकी प्रभाविता आपके द्वारा बेहतर होती है, उसको आप पहचानें। इसी प्रकार आप ये भी देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रबलकों में किस प्रकार से आप संतुलन बना के चलते हैं। हाउ कैन यू बैलेंस डिफरेंट reinforcement टाइप्स? This has to be theoretically recollected by you, and you can think on this and explore what you do and how you do and how can you do. Then third part is what ethical considerations affect your reinforcement choices. आचार के वो कौन से पक्ष हैं जो कि आपके प्रबलन के चुनने के तरीकों को प्रभावित करती हैं। जैसे विगत स्लाइड्स में आपको बताया गया कि संस्कृति एक पक्ष हो सकता है। इसी प्रकार आप विचार करें कि और कौन कौन से पक्ष होते हैं जो कि आपके प्रबलन को प्रभावित करते हैं या प्रबलन के चुनाव के तरीकों को प्रभावित करते हैं। लास्ट पार्ट इज व्हाट इम्प्रूवमेंट्स कैन यू मेक टू योर करंट प्रैक्टिस? वर्तमान में जो आप व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं उसमें किस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं और कैसे बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इन विभिन्न पक्षों पर आप स्वतः विचार करें, विचार करके जो सुधार करने वाली चीजें हैं उनका क्रमशः धीरे धीरे सुधार करें और अपनी कक्षाओं को और अपने शिक्षण कौशल को और बेहतर बनाएं। सो to the last conclusion here, to conclude regarding this particular skill of reinforcement, it can be said that poorly administered reinforcement can backfire, reducing motivation or creating dependency. हम निष्कर्षतया कह सकते हैं कि यदि प्रबलन कौशल का ठीक ढंग से प्रशासन नहीं किया गया, संचालन नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से यह आपको पीछे भी ढकेल सकता है और विशेष तौर पे अभिप्रेरणा को घटा सकता है या निर्भरता बढ़ा सकता है। और ऐसे में यदि विद्यार्थी की निर्भरता बढ़ जाएगी, अभिप्रेरणा घट जाएगी, तो उसके अधिगम में और वांछित परिणाम की प्राप्ति में यह बाधा का कार्य करेगा। इसलिए ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जैसे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के प्रबलन के तरीकों पर व्यावसायिक दृष्टि डालें और व्यावसायिक दृष्टि डालते हुए उसको उपयोग में ले आएं। यदि आप अपने को सूचित रखेंगे, जागरूक रखेंगे, क्रियाशील रखेंगे, तो एक शिक्षक के रूप में निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे और उत्कृष्टता की तरफ बढ़ पाएंगे, अपनी कक्षाओं को प्रभावी बनाएंगे। Hence, as educators evolve, the future demands that teachers continually refine their enforcement strategies through reflection and professional development. By staying informed and responsive, educators can ensure that adhering to precautions discussed in this lecture can help them excel. So, till now we have comprehensively heard lectures on skill of reinforcement. Now you self-reflect on various aspects of the lectures and improve yourself. Thank you all.